আমি সেপ্টেম্বরে এসেছি, 12ই অক্টোবর বিয়ে করেছি। আজকেই বলেছে যে চলে যেতে। ভিসা আমি জমা করেছিলাম, আমি সমস্ত নিয়ম ফলো করেছিলাম, তারপরও কোন বিষয়ের জন্য আমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? ওনারা বলছে যে ওপর থেকে অর্ডার এসেছে। পেহেলগামের ঘটনায় আমরা তো কিছু করিনি, আমাদের কি দোষ আছে বলুন তো? স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে হবে শুনে কান্নায় চোখে জল চলে এসেছে এক পাক মহিলার। তারপরই নরেন্দ্র মোদী সরকারের কাছে তার আর্জি। তিনি বলছেন যে আমাদের কি দোষ আছে। আগে শুনুন কি বলছেন এই মহিলা। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी। अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे यहाँ पर आकर। तो आपके पास क्या वीजा वगैरह लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर में? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है? तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। कितने टाइम का वीजा? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है जवाब। तो अब आप वापस कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे या फिर वाघा बॉर्डर से? बस से फिर वाघा बॉर्डर। इंडिया में आके आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक कोई नहीं बनाया आपका? अभी तक कोई नहीं बनाया, क्योंकि मैं वेटिंग पर थी, पेंडिंग पर थी। এই মহিলার কথা শুনলেন, তিনি পরিষ্কার বলছেন যে তিনি সমস্ত কিছু নিয়ম মেনেই তো ভিসা নিয়ে এখানে এসেছিলেন। বিয়ের পর কেন তাহলে তাকে তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতে হবে? কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি। তার একটাই আর্জি, তাকে নিয়ম মেনে এখানে থাকতে দেওয়া হোক। তিনি আরও বলছেন যে পেহেলগামে যে ঘটনা ঘটেছে তা সমর্থনযোগ্য নয়, যারা ঘটিয়েছে তাদের শাস্তি দিন, কিন্তু সাধারণ জনগণকে নিয়ে কেন এভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে এই প্রশ্ন তিনি করছেন। প্রসঙ্গত, পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় দলে দলে পাকিস্তানিদের ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেয় ভারত সরকার। এই সিদ্ধান্তের জেরে মহা সমস্যায় পড়েছেন পাকিস্তানি নাগরিকরা, যাদের কেউ সদ্য বিয়ে করে এদেশে এসেছেন, তো কেউ আবার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। অল্প সময়ের নোটিসে দেশ ছাড়তে হচ্ছে তাদের। সম্প্রতি কয়েকদিনে এরকম প্রচুর ঘটনা ঘটে গিয়েছে। বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি নাগরিক দিল্লি পুলিশের বিশেষ শাখার পাকিস্তান জাতীয় নিবন্ধ অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এবং তাদের বহির্গমন প্রক্রিয়ার জন্য ফর্ম ফিল আপও করেছেন। সামরিন নামে এক পাকিস্তানি নাগরিক ক্যামেরার সামনে পরিষ্কার প্রশ্ন করছেন যে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমার কি দোষ বলুন তো? আমাকে কোন বিষয়ের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? আমি শুধু এই উত্তরটুকু জানতে চাই। আমি সেপ্টেম্বরে এসেছি, অক্টোবরে আমি বিয়ে করি। ভিসা আমি জমা করেছিলাম, আমি সমস্ত নিয়ম ফলো করেছিলাম, তারপরও কেন আমাকে এই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? ওনারা বলছেন যে ওপর থেকে অর্ডার এসেছে, আজকেই চলে যেতে বলছে। তিনি আরও বলছেন যে 12ই অক্টোবর বিয়ে করেছি, আমি ভিসা নিয়ে এসেছিলাম, 1.5 মাসের ভিসা ছিল, খুব কষ্ট করে ভিসা পেয়েছিলাম। পেহেলগামের ঘটনায় তো আমরা কিছু করিনি,
আমাদের কি দোষ বলুন তো? যারা করেছে, খুব অন্যায় করেছে, তাদের শাস্তি দেওয়া হোক। আমাদের কেন এর মধ্যে জড়ানো হচ্ছে? এই মহিলার কি আর্জি আরো একবার শুনুন। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी। अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे यहाँ पर आकर। तो आपके पास क्या वीजा वगैरह लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। लास्ट ईयर ही शादी हुई है सितंबर में? ये अक्टूबर में 12 अक्टूबर को शादी की है। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है? तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीजा? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। लेकिन मैडम एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है जवाब। तो अब आप वापस कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे या फिर वाघा बॉर्डर से? बस से फिर वाघा बॉर्डर। इंडिया में आके आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक कोई नहीं बनाया आपका? अभी तक कोई नहीं बनाया, क्योंकि मैं वेटिंग पर थी, पेंडिंग पर थी। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলা। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।